Vandana and you're watching 99.9 Engineering Station. So student, today I'm again come up with the MTech and PhD notification for the very good institute, that is IIT Ranchi. So let's explore this with me. So IIT stand for the Indian Institute of Information and Technology, and IIT Ranchi is the autonomous institute set up by the MHRD, Government of India, and the Government of Jharkhand, along with the industry partners with the Tata Motors, TCS, CCL on the public-private partnership in the year 2016. So MHRD, Government of India, taken up an initiative to set up 20 new Indian Institute of Information and Technology on the public-private partnership models. So the major objective of the established the IITs is to set up a models of educations which can produce best in class human resource and IT and harassing the multi-dimensional facts of the information technology in the various domains. While the number of students produced by these IITs would be small, the most important thing is that the number of students produced by these IITs would be small, but the impact they create would be greater. जो MTech प्रोग्राम है वो 2 ईयर MTech प्रोग्राम होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसमें 3 मोड्स MTech प्रोग्राम में कौन कौन से मोड अवेलेबल हैं एडमिशन्स के लिए. तो IIT रांची ऑफर्स करता है MTech के लिए 3 मोड, that is first one is graduate with BTech degree and the GATE candidate, and second one is graduate with a BTech degree with non-GATE candidate, and third one is the candidate sponsored by the government of organization or any government organization, reputed institute organization or academic institute. तो ये 3 मोड हैं. कौन कौन से? गेट क्वालिफाई हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं भी क्वालिफाई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप स्पॉन्सर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो MTech जो ऑफर कर रहा है वो 2 ब्रांचेस में ऑफर कर रहा है ये इंस्टीट्यूट. कौन कौन सी? कि डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए प्रोग्राम कोड इन्होंने रखा है CSE, और क्वालिफाइंग डिग्री जो चाहिए इस ब्रांच के लिए वो है BTech और BE, और इक्विवेलेंट इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स. तो दीज आर द ब्रांचेस required for this MTech program, that is data science artificial intelligence. Second program is embedded system and internet of things. For this program code is ECE, and the qualifying degree required is that BTech or BE or equivalent in electronic engineering, electronics and communication engineering, electronics and telecommunication, electronics and instrumentation, or electronics and electricals. तो these branches are required for this MTech program. ठीक है. अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए. तो फाइनेंशियल असेसमेंट जो है वो सिर्फ BTech कैंडिडेट्स को ये अप्लाई कर रहे हैं, BTech क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, वो भी 12,400 पर मंथ, ठीक है. और स्पॉन्सर और नॉन गेट स्टूडेंट को ये ऑफर नहीं कर रहे हैं. प्रोग्राम फीस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोग्राम फीस एडमिशन के फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन के टाइम ही देनी है थ्रू SBI कलेक्ट, और सेमेस्टर का जो फीस है वो है, ट्यूशन फीस इनकी 50,000 है फॉर जनरल, EWS, OBC एंड SC/ST के लिए. तो जो ट्यूशन फीस है इनकी 50,000 है, इंस्टीट्यूट फीस है 15,000, और कॉशन मनी ये दे रहे हैं 20,000, ठीक है. सेकेंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स इनकी फ़ीस हो जाएगी 65,000, ठीक है. और हॉस्टल चार्ज, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर नहीं रह रहे हैं तो हॉस्टल और मेस के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे. अब बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट के लिए. तो कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री, ये तो आपको पता ही है. अगर आपको MTech करना है तो बैचलर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए. बैचलर डिग्री वो भी किसी प्रोफेशनल के लिए, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC,
गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिग्री जो होगी एमटेक के लिए वो, ये आपको मैंने ब्रांच की कोड सब पहले ही आपको बता दिया, जो भी था वो सेम एज इट इज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे आपके पास द कैंडिडेट विद इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ एंड द डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज लाइक दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके लिए एक्वायर्ड है। और साथ ही में जिनके पास वैलिड गेट स्कोर है इन द अप्रोप्रिएट गेट पेपर एज पर दी टेबल 2। तो जैसे भी आप जिस ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसी ब्रांच में उसी पेपर में आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें एमटेक एडमिशन के लिए, तो आपके पास मिनिमम 60% और 60% और CGPA पर CPA जो होना चाहिए 6.0 इन 10 पॉइंट स्केल पे होना चाहिए फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर जो ब्रांचेस हैं मतलब कैटेगरी है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST और PS के लिए फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए होगा 55% CGPA पर CPA, दैट इज़ 5.5 इन 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, नॉन गेट स्टूडेंट के लिए भी सिमिलर ही है, आपको परसेंटेज उतने ही चाहिए 60% और SC ST के लिए 55%। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी थ्रू जो नॉन गेट स्टूडेंट है उसके लिए आपको रिटन टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन सेकेंड पॉइंट उसका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू सेक्शन। ठीक, तो ये दो उसके सेक्शन है। ठीक, अब स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं। स्पॉन्सर भी जो भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल्स होते हैं, तो सेम वही सारे रूल्स हैं, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपको पता है कि क्या क्या होना चाहिए। गेट के लिए मैंने बता दिया, जो गेट है वो गेट स्टूडेंट है उनको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मे बी ले सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स वो बुलाते हैं। तो उनका गेट स्कोर से भी वो कर सकते हैं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से भी बुलाया जा सकता है, और वैसे भी बुलाया जाता है। और फॉर नॉन गेट कैंडिडेट के लिए ये तो मस्ट है कि वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग के लिए रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट पे। इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मई मंथ में ही प्रोवाइड हो गया था, May 12, 2020 में। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है June 26। तो ये नोटिफिकेशन आपकी तरफ मैं थोड़ा देर से दे रही हूँ, लेकिन अभी भी टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो जुलाई 3 तारीख को आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो 18 जुलाई को है, लेकिन टेंटेटिव है क्योंकि कोविड की वजह से चेंज भी हो सकता है। तो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जुलाई 21 है। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, अब रिजर्वेशंस जो हैं वो रिजर्वेशन यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं SC ST ST अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रहता है वही रिजर्वेशन है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोड है, नंबर ऑफ सीट देख लेते हैं, दोनों में सीट कितने अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ब्रांच दैट इज़ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 20 टोटल सीट जो है 25 है, और दोनों ही ब्रांच में टोटल सीट 25 है। और ये आप जैसे देख सकते हैं कि यो जनरल के लिए 10 सीट है दोनों ही ब्रांच में, SC के लिए 4 ST के लिए 2 एंड OBC के लिए 7 और EWS के लिए 1 और PC के लिए 1। तो ये मेडिकल फिटनेस आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें और कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे फॉर्म भरना है, विड्रॉ करना चाहते हैं, वो सारे रूल्स इसमें आपको दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं एमटेक अब हम बात करते हैं PhD एडमिशन की। अब हम बात करते हैं PhD एडमिशन की।
सो जो पीएचडी एडमिशन के लिए भी सेम सारी चीज़ें हैं कि आपके एमटेक और बीटेक के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे ये दो admission to PhD program. First one is application are invited for the admission to PhD program at IIT Ranchi is that and second is admission criteria and eligibility जो होनी चाहिए वो दे रखी है। ये 6 मोड्स हैं यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई करने के लिए। दैट इज़ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर, sponsor category full time and sponsor category part time, on deputation and aspiring student in higher academic full time। तो ये 6 जो कैटेगरी है वो दे रखी है किस तरीके से, और ये ब्रांचेस भी इसमें दे रखा है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ये ब्रांच है, और ये आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। गेट सीकिंग एडमिशन शुड बी वैलिड आपके पास पीएचडी के लिए जो है गेट, यूजीसी, नेट और सीएसआर नेट होना ही चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने अलग अलग आपको बता रखा है कि स्पॉन्सर कैटेगरी क्या है, नॉन स्पॉन्सर कैटेगरी क्या है, और डेपुटेशन क्या है। तो ये सारे रूल्स आपको यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन जो है दे रखा है, मिनिमम ड्यूरेशन जो पीएचडी का है वो 3 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। ऑल द PhD स्टूडेंट हैज़ टू स्टे विद इन द कैंपस ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ PhD प्रोग्राम। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो सिमिलर टू एमटेक है। दैट इज़ दिस फॉर्म इज़ एलिजिबल फ्रॉम May 12, 2020 and the last date for submitting the application form is June 26, 2020, ठीक है। और रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो होगा मे बी 20 जुलाई 19, और जो अनाउंसमेंट हो जाएगा 21 जुलाई को, ठीक है। और ये जो फॉर्म है इसको भेजने का प्रोसीजर ये है कि आप इसको फॉर्म जाके फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद जो आप है इसकी कॉपी स्कैन करके एक पर्टिकुलर आईडी दे रखी है इन्होंने, उस पर सेंड करना है, ठीक है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपको उस टाइम पे लेके आना है। फाइनेंशियल असेसमेंट पीएचडी के लिए जो मिल रहा है वो 31,000 पर मंथ है फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर, और उसके बाद से ईयर में आपको 3500 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये इसके और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल असेसमेंट। ये फ़ीस दे रखी है इन्होंने। मेडिकल फिटनेस उसी तरीके से है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो वहाँ पे भी जो एप्लीकेशन फ़ीस थी वो नॉन रिफंडेबल थी, और जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी और EWS के लिए 1000 है, और SC ST PC और वुमेन के लिए 500 है, सेम ही है। और SBI कलेक्ट से आपको भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं, देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि इस बार एमटेक एडमिशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि जॉब्स की वैकेंसी कम निकलने वाली है। साथ ही में जॉब की वैकेंसी कम निकलेगी तो आपको एमटेक एडमिशन के लिए लोग ज़्यादा भागेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप हर IIT और हर IIITs NITs में आप फॉर्म तो ज़रूर भरिए, ताकि आपका कॉल आए। और हो सकता है कोविड के वजह से रिटन एग्ज़ाम ना हो के पर्सनली, मतलब ऑनलाइन कुछ, या तो रिटन एग्ज़ाम ले लें, ऑनलाइन इंटरव्यू ले लें। तो ऑनलाइन के थ्रू ज़्यादा मे बी ईजी हो सकता है, मे बी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर दें तो, ठीक है। तो ये था मेरा नोटिफिकेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।